Good morning student. Now we will go through the next topic, e-shopping. What is e-shopping? E-shopping is one of the most common way of shopping. Now here what we can do is we can buy product and sell product online very easily with the help of shopping sites such as Amazon, Flipkart, Snapdeals. So these are some shopping sites where we can sell products and buy products easily. There are more than it, like if you want to sell your used products, so we can buy or sell it in OLX or Quikr.com. So these are some shopping sites where we can buy and sell product easily. So there we don't need to go to market and buy product or sell products. मतलब कि आप जितने भी शॉपिंग साइट्स देखते हैं, स्नैपडील हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया या अमेज़ॉन हो गया, तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, आप जहाँ पे भी आपको जो भी प्रोडक्ट्स चाहिए यहाँ पे आप इजीली आपको अवेलेबल हो जाता है और ये आपको होम डिलीवरी के थ्रू आपके घर में मिल जाता है. सो देयर इज़ नो नीड टू गो आउटसाइड ऑफ द हाउस. नाउ डेज nobody want to go to the market and get the bother of buying products over there and do the bargaining and get the products. Here you can see the product and what is in your budget you can take it. आपके जो बजट में है आप उसको आराम से ख़रीद सकते हैं, आपको कहीं पे जाकर के तोल भाव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. So for doing this you need a online modes of payments. So online mode of payments are of 4 types. Net banking, that is online transfer, debit or credit card, e-wallet, UPI apps. So net banking is whatever your branch is, means if you are having a account in SBI or in IDBI or Axis, Canara, any bank, you can go through it and do it online payment. For the next debit and credit card, you need to get your debit or credit card. That is, debit card means your ATM card. That is, if you have a amount in your account, then only you can purchase the product. But there is a huge difference between debit and credit. That is, credit card means there is a certain limit of purchasing product and you don't carry an amount. The amount is given to you by your bank through your score, through your civil score. Civil score means what is your amount that you every time purchase or you every time put in your account. So with that there is a account created, there is a score created. With the help of that your bank gives you loan, is a kind of loan given to you, that is credit card. You can take credit. डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस आपका ये है कि डेबिट कार्ड में आप क्या कर सकते हैं, आपके अकाउंट में जितनी भी पर्याप्त राशि है उससे आप सामान खरीद सकते हैं, उसके अतिरिक्त आप सामान नहीं खरीद पाएंगे. लेकिन आप जब क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो क्रेडिट कार्ड की भी एक सीमा होती है. क्रेडिट कार्ड में आपको आपका बैंक जो है उसमें पैसे देता है. जैसे कि 25,000 का अमाउंट हो गया, तो फॉर एग्ज़ाम्पल 25,000 का अमाउंट आपको जो दिया गया है, आप उतने ही लिमिट में ही सामान खरीद सकते हैं उस कार्ड से. उसके बाद आपको कैश पेमेंट करना होगा या फिर कोई अदर वे से आपको पैसे देने पड़ेंगे. सो दैट इज़ क्रेडिट कार्ड. सो नेक्स्ट टू इट इज़ ई वॉलेट. ई वॉलेट क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं आजकल पेटीएम हो गया, फ़ोनपे वॉलेट हो गया, तो ये जो सारे इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स हैं, वॉलेट्स मीन्स आप अपने पर्स, जैसे पर्स में रखते हैं पैसे, वैसे ही आप क्या है अपने अकाउंट से, आपके जो बैंक के अकाउंट हैं आप उससे पैसे किस में रखते हैं, अपने ई वॉलेट के अकाउंट में. ई वॉलेट के अकाउंट में जो आप रखेंगे दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, तो आप उसमें जो पैसे रखेंगे उससे आप खर्च कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ वॉलेट एंड अ ई वॉलेट. ई वॉलेट मीन्स आपने जितने भी अपने पर्स में पैसे रखे हैं, आपके पास एक पर्स है, अब पर्स अवेलेबल है, उस पर्स में जितने पैसे होंगे आप उतने ही खर्च कर सकते हैं. वैसे ही इस ई वॉलेट में भी सेम चीज़ है, आपको ई वॉलेट में उतने ही पैसे दिए जाएंगे जितना आपने रखा है और आप उस वॉलेट से ही उतने खर्च कर पाएंगे. उससे ज़्यादा आपको खर्च करने के लिए अनुमति नहीं है या आपके पास पैसे अवेलेबल नहीं रहेंगे. देयर विल बी अ जीरो बैलेंस इफ़ यू डोंट कैरी अ बैलेंस, अ
minimum balance in your e-wallet. So next to it is UPI apps. Now what are UPI apps? UPI apps, nowadays we are seeing different types of apps such as PhonePe, Google Pay, Bheem app. So there are so many apps which we use regularly nowadays. So UPI apps. Here you can see unified payment interface. This is a mobile payment way where where the password is authenticated for your account, and there they will give you a money transfer to another person instantly through your account. इसमें क्या होता है, आपको क्या है, यूपीआई पिन से क्या होता है, तुरंत आप क्या करते हैं, दूसरे को पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं ऑनलाइन विद इन सेकेंड्स. यू डोंट नीड टू गो टू योर बैंक और यू डोंट नीड टू take out your credit card or debit card, or you even don't need to go through your online net banking service. You just need to go through your UPI app, that is your application of PhonePe or Google Pay, and you'll open it and you will just go through it and you will transfer your money from one person to another, either to buy a ticket or you want to purchase some products. So you can purchase it very easily with the help of UPI app. The very next, that is, what is the main purpose of using internet, and the main rule on internet is netiquettes. Netiquettes means one of the most common way, netiquette, that is net's etiquette. What etiquette and network etiquette, how to handle a network, that is netiquette. If you handle something, you need a etiquette, you need a manner. If I'll go through a school and I have to go through its etiquette, I'll go through its manner, I'll go through its rules. अगर मैं एक स्कूल जाती हूँ या फिर मैं किसी भी काम को कर रही हूँ तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, रूल्स की. तो मैं उसके रूल्स के अकॉर्डिंग जाऊंगी. अगर मैं अपने स्कूल जाऊंगी तो मैं उसको यूनिफॉर्म में जाऊंगी. तो उसका जो यूनिफॉर्म है वो एक रूल में आता है. आपके जो बात करने का मैनर है वो एक रूल में आता है. खाने का जो मैनर है वो भी एक रूल में आता है. तो वो दिखाता है आपका एटिकेट, योर मैनर्स. व्हाट इज़ योर मैनर टूवर्ड्स योर सोशल नेटवर्किंग. तो आपकी आप जो सोशल में रहते हैं, आप जो सोशल नेटवर्किंग में रह रहे हैं, चाहे वो आपका मोबाइल हो, चाहे वो आप आसपास के सराउंडिंग में हो, तो आप जो भी आप सोशलिटी में रह रहे हैं, आप सोशल सर्विस कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका उसमें किस चीज़ की दिखाई देनी चाहिए, एटिकेट्स. उसमें एटिकेट्स ज़रूरी है, हर किसी चीज़ में एटिकेट्स की ज़रूरत होती है. सो देयर इज़ ऑल्सो अ नीड टू फॉलो नेट्स रूल. नेट्स रूल इज़ हाउ टू हैंडल योर नेट. To handle a net, there are some netiquette rules. They are, first of all, if you want to go through net, so you will have to keep something in mind, some points to be kept in mind. These are, identify yourself. So first of all, you have to identify yourself, means you have to mention your name at the end of your email or message. Whatever your name is, ABC, you will have to mention your name. That is your first identification of yourself. That is the first rule to identify yourself. That is first etiquette. Then the next line is give subject line. Subject line means you will have to give a subject line that for what purpose you are using it, for what purpose you are sending a mail to another person. Next is respect privacy. That is the most important thing in internet. On internet, that is the most important aspect of every individual, every email ID or every person, that is respect their privacy. Never harm their privacy, never try to enter their privacy document or their private documents or any other thing without their permission. Very next, avoid capitalization. Capitalization means capital letters. You don't need to use unnecessarily capital letters in between your sentences on internet. That is shouting over internet, means you are shouting on somebody like anything, like that is the most aspects of writing in on internet. Then next is avoid net speak. Now what is net speak? Net speak is the short form of word that is commonly used for chatting.
nowadays we are chatting with each other, so there we use another words, some short forms, that is one of them are BTW. BTW is, by the way, then for thank you you use the word TYS. So these are some common words which you use, that is net speak. So you should avoid net speak, that is one kind of irresponsibility towards your computer, towards your network. So we should avoid all these things. आपको क्या करना है, नेट जब आप यूज़ करते हैं, नेटिकेट्स, किसी भी चीज़ को नेटिकेट किसको कहते हैं, एटिकेट किसको कहते हैं, मैनर को कहते हैं। और नेट में आप जब कुछ चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको कहते हैं नेट का एटिकेट्स, नेट्स में यूज़ करने वाले मैनर। कि क्या आपको खाने की समझ है, खाने पीने की समझ है, तो आपको नेट चलाने की भी समझ आनी चाहिए। आपको कैसे नेट चलाना है उसकी समझदारी होनी चाहिए, उसको आपको दिमाग में रखना है। जैसे कि आप किसी के घर जाते हैं तो आप कहीं पे भी जा कर के नहीं बैठ सकते हैं, आपको आप अननेसेसरली उससे बातें नहीं कर सकते, कुछ भी अनवांटेड सामान हो तो आप यूज़ नहीं कर सकते, आप अनवांटेड चीज़ें नहीं कह सकते। तो ये क्या है, वो आपका मैनर बताता है कि आप उन्हें फालतू में कुछ भी नहीं कह सकते। तो ये सारी चीज़ें आपके एटिकेट्स को दर्शाती है। तो उसी तरीके से हमारे नेट को भी चलाने के लिए, नेटवर्क के लिए भी आपका क्या है, अलग अलग तरीके के रूल्स बनाए गए हैं। उनमें से ये जो हैं, आइडेंटिफाई योरसेल्फ, गिव सब्जेक्ट, रिस्पेक्ट प्राइवेसी, अवॉइड कैपिटलाइजेशन, अवॉइड नेट स्पीक्स। तो सबसे पहले है आपका कि आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन हैं। आप ये मैसेज के थ्रू में लास्ट में आप लिखेंगे कि आप अपना नाम लिखते हैं। जैसे कि आप कोई भी लेटर लिखते हैं किसी को भी, तो आप अपना नाम नीचे लिखते हैं, ऐसे ही तो नहीं भेज देते होंगे किसी को, तो आप अपना नीचे नाम लिखते ही होंगे। तो वही आपको यहाँ पे भी करना है। तो आप जैसे ही किसी को ईमेल भेज रहे हैं, ईमेल इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन और अ मैसेज, तो आप उसमें भी नीचे अपना नाम लिखेंगे। देन वेरी नेक्स्ट इज़ गिव सब्जेक्ट लाइन। तो सब्जेक्ट लाइन, जैसे आप एप्लीकेशन किसी के बारे में लिखते हैं तो एप्लीकेशन फॉर लीव लिखते हैं, जस्ट आप एप्लीकेशन नहीं लिख देते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर लीव, आपका जो टॉपिक है कि आप किस लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो वो आपके लिए सब्जेक्ट लाइन देना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट लाइन देना ज़रूरी होता है। और वैसे ही आपको यहाँ पे भी सब्जेक्ट लाइन देना ज़रूरी है, नेट पे भी आपको सब्जेक्ट लाइन देना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है आपका रेस्पेक्ट प्राइवेसी। ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी की प्राइवेसी को भंग ना करें, किसी के प्राइवेट सामानों को हाथ ना लगाएं, किसी के प्राइवेसी पे आप अननेसेसरली अनवांटेड विदाउट परमिशन आप किसी की प्राइवेसी पे ना जाएं। तो ये क्या है, आप जैसे कि किसी के घर जाते हैं तो आप उनके अलमारी में रखे हुए सामानों को हाथ नहीं लगा सकते, या फिर कोई सामान वहाँ पे रखी हुई आप उठा करके नहीं जा सकते। तो ये उसकी प्राइवेसी की आपने इज्जत की। तो यहाँ पे भी आपको नेट में क्या करना है, आपको दूसरे के परमिशन के बिना आप उनके अकाउंट में नहीं जा सकते। दैट इज़ रिस्पेक्ट टू प्राइवेसी, आप उनके प्राइवेसी को इज्जत देंगे। दूसरा है अवॉइड कैपिटलाइजेशन। अवॉइड कैपिटलाइजेशन क्या है, आपको जब आप कुछ भी वर्ड लिखते हैं, तो आप कोई भी लेटर्स लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, तो अननेसेसरली आप बीच में कैपिटल ए, कैपिटल बी इस तरीके से नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आप एंट लिख रहे हैं, तो एंट लिख रहे हैं तो ए एन टी एंट होता है। तो ए एन टी एंट में आपने ए कैपिटल रखा, एन जो है आपने उसे भी कैपिटल रखा, और टी को आपने स्मॉल कर दिया। सो दिस इज़ नॉट अ सिंबल ऑफ योर एटिकेट्स और ऑफ राइटिंग। तो ये आप जनरली भी अगर आप लिखेंगे तो भी ये गलत है, और अगर आप नेट पे भी लिखेंगे तो भी ये गलत है। एंड द वेरी नेक्स्ट, अवॉइड नेट स्पीक। तो नेट स्पीक में क्या है, आजकल जो हम लोग चैटिंग करते हैं तो आपस में जो आप चैटिंग कर रहे हैं, वो चैटिंग पे आप जो वर्ड्स बीच बीच में लिखते हैं, तो वो जो वर्ड है छोटा कर देते हैं। BTW हो गया, जैसे यहाँ पे बाय द वे लिखा गया है, जिस मैंने आपको बताया कि आप थैंक यू लिखते हैं तो TYS लिखते हैं, TYS क्यों, गेट वेल सून, तो GTW, GTS क्यों, ये सब क्यों लिखना। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताती है कि आपका एटिकेट्स जो है नेटवर्क के थ्रू, नेट चलाने के एटिकेट्स के बाहर है। क्योंकि ऐसे वर्ड्स वही लिखेंगे जिनको नहीं आता है चलाने के लिए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं जिनको नहीं आता है, वही ये सब काम कर सकते हैं। तो आपको अगर ये चलाने आता है, आपको इसकी ज्ञान है, तो आप इसे सही ढंग से ही यूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ blogging. So here blogging, what is blogging? So blogging refers to the personal content to the net
which are uploaded by a user. So now what we want to know about blogging. What is blogging? Blogs, आप सुनते होंगे blogs, कितने लोग blogs लिख रहे हैं. So what is blog? What is your thought? What you write on your personal diary or somewhere else that you keep it. So that is you see some kind of quotes. So eat to live but do not live to eat. These are some quotes, or you write some kind of blogs. So these are the blogs which a person self humanize it and write it. So self, आपने जो खुद सोचा, आपने खुद सोच करके जो आपने अपने ब्रेन से लिखा है, that is blog. So that is blog which you upload. After you upload in your system or through any blogging sites, then only that become a blog. So to go through publish your article or something like that, you write in your pages or somewhere else in your diary, or there is something in your mind, so you write it as an article that you publish it on internet, that becomes a blog. आप कुछ भी लिखते हैं इंटरनेट पे और उसको आप पब्लिश करते हैं तो वो हो जाता है ब्लॉग. ब्लॉग किसे कहेंगे? जनरली अगर हम लोग कहना चाहें कि ब्लॉग किसे कहते हैं, तो अगर आप कुछ सोचते हैं, कुछ अच्छे विचार हैं आपके, और उस विचार को अगर आप लिखना चाहते हैं, दूसरों को बताना चाहते हैं, दूसरों तक शेयर करना चाहते हैं, तो उसको लिए क्या करेंगे आप? उसको आप वेबसाइट उसकी है, उसकी वेबसाइट पर जाएंगे. उसके अलग अलग वेबसाइट्स हैं ब्लॉग्स की, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स है, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स पे जाएंगे और ब्लॉगिंग वेबसाइट्स पे जा कर के आप उसे अपलोड कर देंगे. तो वो हो जाएगा आपका ब्लॉगिंग, जिसमें आप अपने पर्सनल डायरी की तरह उस पर कुछ भी लिख सकते हैं. तो उस पर आप कुछ भी लिखते हैं जो कि लोगों को अच्छा लगेगा, दैट इज़ जो लोगों की भलाई के लिए होगा, किसी को अप्रिशिएट करने के लिए होता है, किसी को इंस्पायर करने के लिए होता है. तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ ब्लॉग. Now the very next is podcasting. Podcasting is a form of audio broadcasting on internet. Podcasting, whatever you see on internet from any website, you download it or you upload it, so you get something from audio files from other source, that is podcasting. आप कहीं से भी, कंप्यूटर से हो गया, या फिर आप अपलोड करते हैं, आप कुछ गाना गाते हैं, या फिर आप कोई गाना को लिखते हैं, उसके बाद आप उस गाने को लिख करके फिर आप उसके बोल जब दोहराते हैं तो आप उसे अपलोड करते हैं. तो आपने जो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स पे आपने उसे अपलोड किया, दैट इज़ पॉडकास्टिंग. आपने अपने ऑडियो को, जैसे कि FM रेडियो में होता है, तो आपने अपनी आवाज़ को दूसरे तक पहुंचाने के लिए जो माध्यम यूज़ किया है, दैट इज़ पॉडकास्टिंग, ताकि पूरी दुनिया सुन सके. तो आप इंटरनेट पे जानते हैं कि पूरी इंटरनेट जो है एक दूसरे को जोड़ती है, पूरे ऑल अराउंड द वर्ल्ड everyone is connected to one another through internet. So the mode of internet, one can connect to whole world. So to connect from whole world we need an internet, and with the help of internet we can take different types of features such as ब्लॉगिंग एंड पॉडकास्टिंग. तो ब्लॉग्स आप अपने लिख सकते हैं, और पॉडकास्टिंग में आप क्या कर सकते हैं, अपनी कोई भी कविता हो गई जो उसको आप कहना चाहते हैं, कुछ गाना हो गया, तो आप कुछ गीत दोहराना चाहते हैं, उसमें कुछ बताना चाहते हैं, कुछ गुनगुनाना चाहते हैं, आप उसमें कुछ अपनी कुछ बातें रखना चाहते हैं. कोई होते हैं कि अच्छे नरेट करते हैं, तो कुछ आप अच्छे नरेशंस देना चाहते हैं, कुछ स्टोरी नरेट करना चाहते हैं. हो सकता है कि आपको कुछ बताना हो, उसमें कुछ अच्छी बातें हो जो कि होती है किसी को मोटिवेट करने के लिए, तो मोटिवेशनल बातें कहनी हो, तो ऑडियो के थ्रू ये सारी चीज़ें हो सकती है, और पॉडकास्टिंग के थ्रू आप आर्टिकल्स में वो लिख सकते हैं. अगर आपको इस वीडियो में कहीं पे भी कोई भी दिक्कत लगे, इसके 2 पार्ट्स हैं, पार्ट A एंड पार्ट B. तो आपको कहीं पे भी इसमें कोई भी दिक्कत लगे, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 इंटरनेट ऑनलाइन सर्फिंग, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इसमें आपको दोनों दे दिया गया है. अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है, सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी. प्लीज़ बी फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस चैप्टर. थैंक यू.